Thereafter, Maharaj Yudhishthir at once went to his capital Hastinapur, accompanied by Lord Sri Krishna, and there he consoled his uncle and aunt Gandhari, who was an ascetic. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी, please माता जी. Sorry, I'm just out. Yeah. Dhritarashtra and Gandhari, the father and the mother of Duryodhana, and his brothers were elder uncle and aunt of Maharaj Yudhishthir. After the battle of Kurukshetra, the celebrated couple, having lost all their sons and grandsons, were under the care of Maharaj Yudhishthir. They were passing their days in a great agony over such a heavy loss of life and were practically living the life of ascetic. The death news of Bhishmadev, uncle of Dhritarashtra, was another great shock for the king and the queen, and therefore they required solace from Maharaj Yudhishthir. Maharaj Yudhishthir was conscious of his duty, and he at once hurried at the spot with Lord Krishna and satisfied the bereaved Dhritarashtra with with kind words from both himself and the Lord also. Gandhari was a powerful ascetic. Although she was living the life of a faithful wife and a kind mother, it is said that Gandhari also voluntarily blindfolded her eyes because of the blindness of her husband. A wife's duty is to follow the husband husband cent percent, and Gandhari was so true to her husband that she followed him even in his perpetual blindness. Therefore, in her actions, she was a great ascetic. Beside that, the shock that she suffered because of the wholesale killing of her 100 sons and her grandsons, also certainly too much, also was certainly too much for a woman. But she suffered all this just like an ascetic. Gandhari, although a woman, is no less than Bhishmadev in character. They were both remarkable personalities in the Mahabharata. Haribol. Krishna माता जी, thank you. Again, one of the most beautiful verse, जिसमें अब युधिष्ठिर महाराज at once he went to his capital Hastinapur, accompanied by Lord Shri Krishna. अब उन्होंने हस्तिनापुर जाके सीधा ऐसा नहीं कि जाके वो राजगद्दी पे बैठ गए हैं, चलो जी राजा बन गया हूं मैं, और जो मेरा शौक था वो भी दूर हो गया है, भीष्म पितामह ने वो भी दूर कर दिया है, तो जाके पार्टी करते हैं. नो, राइट, व्हाट ही डिड, he met Gandhari straight he went to Gandhari and Dhritarashtra, his uncle and aunt. Hmm? And it is mentioned that it took days to console them. उनको जाके वो कंसोल करने लगा. कैन यू इमेजिन, जिनकी वजह से युद्ध हुआ, धृतराष्ट्र जो अपने पुत्र को नहीं समझा सका. ठीक है, जब दुर्योधन पैदा हुआ था तभी उनको बोल दिया गया था कि इस पुत्र को त्याग दो, ये तुम्हारे सारे कुल का नाश करेगा. बट धृतराष्ट्र was too much attached, and he didn't do anything. और उसकी वजह से ये सारा युद्ध हुआ. He was part of all the conspiracies, although he did not initiate it. बट जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज इन्होंने कौरवों ने करी थी, धृतराष्ट्र was a part of it, right? And he was kind of supporting it as well, right? He did not stop Duryodhan and his brothers, जो भी वो अधर्म कर रहे थे. ऐसे आदमी को जाके युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, उनको जाके कंसोल कर रहे हैं. कैन यू इमेजिन दिस? ये एक वैष्णव ही ये कर सकता है, और ये किसी में क्वालिटी आ नहीं सकती. अभी हम भक्ति वृक्षा में भी यही वाला टॉपिक लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे कि सोल हम सोल के बारे में जानना क्यों चाहते हैं. अभी इसमें हु एम आई का टॉपिक चल रहा है. सो हु एम आई, आई एम द सोल, आई एम नॉट द बॉडी. ये हम 5 4 5 साल से हम ये सुन रहे हैं ना, आई एम द सोल, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, आई एम नॉट द बॉडी. बट उसका फायदा क्या है, इस चीज का फायदा क्या है, ये इस चीज को समझने का. वन ऑफ द एडवांटेजेस इज फॉरगिवनेस, जो कि युधिष्ठिर महाराज ने दे दी.
स्ट्रेट अवे, विदाउट इवन आस्किंग फॉर। उन्होंने, धृतराष्ट्र ने कोई माफी थोड़े ना मांगी उनसे। स्टिल, विदाउट इवन सेइंग सॉरी, वो युधिष्ठिर महाराज ने उनको माफ कर दिया। और माफ भी क्या किया, दिल से। एक होता है ना, ओके सॉरी बोला, हम बोल देते हैं इट्स ओके चलो, मुंह पे बोल देते हैं बट अंदर से वैसे ही रहता है। यहाँ पर वो जाके उनको, इट टुक डेज, कितने दिन तक उनका, उनको वो जाके कंसोल करते रहे। महाराज युधिष्ठिर उनको समझाते रहे कि नहीं दैट्स ओके या वट एवर, राइट। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ वैष्णवा, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। अगर हमें कंपैशन और फॉरगिवनेस नहीं है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, विच मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग अवर ड्यूटीज प्रॉपरली। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो दैट इज, भागवतम चल रही है, तो मैं वही बता रहा था फॉरगिवनेस पे। तो युधिष्ठिर महाराज, he went back after the battle of Kurukshetra to to हस्तिनापुर, एंड वहां पर वो थे धृतराष्ट्र और गांधारी। ऑल्दो उनकी वजह से सारा युद्ध हुआ था, बट स्टिल ही वाज ट्राइंग टू कंसोल देम। बहुत बड़ा हार्ट चाहिए जिसने तुम्हारे पर आतताई, जिसने तुम्हारे घर को जलाया हो लाक्षागृह में, जिसने तुम्हारी वाइफ के साथ अत्याचार वो किया हो, मोलेस्ट किया हो, ठीक है, जिसने तुम्हारे भाई भीम को मारने की अटेम्प्ट की हो, राइट। इतना ही सब कुछ होने के बाद भी इट रिक्वायर्स अ वेरी बिग हार्ट टू गो टू दैट पर्सन एंड टू कंसोल हिम, राइट। So he was doing that. So why he was able to do that? Because he was a Vaishnava, right? उनको सोल और बॉडी के बीच में डिफरेंस पता था। तो वही हम एडवांटेजेस जो हम कर रहे थे, वन ऑफ द एडवांटेजेस was that he was a, one of the advantage of soul realization is forgiveness और compassion। अगर हमें ये नहीं है, will not be able to do justice to our, we cannot call ourselves a वैष्णवा, राइट। तो ये फॉरगिव करने की हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल्स भरी पड़ी हैं, राइट। एक फोर्थ कैंटो में आती है ये स्टोरी, इंद्र की और पृथु महाराज की। फोर्थ कैंटो, चैप्टर नंबर 20, वर्स नंबर 18। उसमें क्या बोल रहे हैं, एज किंग इंद्रा वॉज स्टैंडिंग बाय, ही बिकेम ashamed of his own activities and fell down before King Prithu to touch his lotus feet. But Prithu Maharaj immediately embraced him in great ecstasy and gave up all envy against him for for his having stolen the horse meant for the sacrifice. अब इंद्र ने क्या किया था, उनका घोड़ा चुरा लिया था अश्वमेध यज्ञ का, पृथु महाराज का। उसके बाद उनकी बहुत आपस में लड़ाई हुई, वो सब कुछ हुआ। लेकिन बाद में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड ही फेल डाउन बिफोर किंग पृथु टू टच हिज फीट। एंड उन्होंने क्या किया, पृथु महाराज ने इमीडिएटली ही फॉरगिव हिम। तो सारी एनवी दोनों में आपस में खत्म हो गई। तो कैसे हुआ ये? अगर आप ये परपोर्ट पढ़ूं मैं, व्हाट दे आर सेइंग इज, Indra decided to fall down at the lotus feet of King Prithu, but the king was so magnanimous, a Vaishnava, that he did not want Maharaj Indra to fall down at his feet. देखो इंद्र कौन था, देवताओं का राजा। देवताओं का राजा आके उनके फीट पे बेग कर रहा है, बट किंग पृथु डिडंट वांट दैट। ही इमीडिएटली पिक्ड हिम अप एंड एम्ब्रेस्ड हिम, उन्होंने उनको गले लगा लिया। एंड बोथ ऑफ देम फॉरगॉट ऑल द पास्ट इंसिडेंट्स। बोथ किंग इंदिरा एंड महाराज पृथु वर एनवियस एंड एंग्री विद ईच अदर। बहुत लड़ाई चल रही थी दोनों में, बहुत एनवी थी। बट सिंस बोथ ऑफ देम वर वैष्णवास और द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड विष्णु, इट वाज देयर ड्यूटी टू एडजस्ट द कॉज ऑफ देयर एनवी, बिकॉज कॉमन गोल, देयर गोल वाज कॉमन। बोथ किसके थे, लॉर्ड विष्णु के भक्त थे। इसीलिए दोनों का कॉमन गोल था। जब हमारा गोल कॉमन होता है, अब जैसे टीम में, हम ऑफिस में भी होता है ना, जब हमारा टीम में चाहे जितना मर्जी हमारे ऑफिस में मनमुटाव हो, बट हमें पता है कि प्रोजेक्ट को डिलीवर करना ही करना है, राइट। हमारे यूनिवर्सिटी में भी वो, उनका यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द देयर वैल्यूज इज वन टीम।
राइट। तो कुछ भी करके यू हैव टू अचीव योर गोल। तो नहीं तो गोल अचीव ही नहीं होगा। तभी वो बोलते हैं ना, वन ऑफ द क्वालिटी, जब इंटरव्यू भी लेते हैं, डू यू जेल जेल विद द टीम। तो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी। तो अगर उनका कॉमन गोल था एंड इट वाज देयर ड्यूटी टू एडजस्ट, तो एडजस्ट उनको करना पड़ा, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल ऑफ cooperative behavior between the Vaishnavas in present days. However, because people are not Vaishnavas, they fight perpetually among one another and are vanquished without finishing the mission of human life. Right? कलयुग, कलयुग को क्या बोलते हैं? एज ऑफ क्वरल। यहाँ पर थोड़ा सा किसी को टच करो, साथ ही वो काटता है। एज ऑफ क्वरल। Whereas as a Vaishnava, it is a first class example of cooperative behavior. और cooperative कैसे होगी? जब ये क्वालिटीज आएंगी आप में, कंपैशन की और फॉरगिवनेस की, जो कि युधिष्ठिर महाराज ने दिखाई हैं टूवर्ड्स धृतराष्ट्र एंड गांधारी। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उनको, चलो अब मैं आ गया हूँ, राजा बन गया हूँ, चलो इनको जेल में डालो। He didn't do that, right? बहुत सालों तक वो उसके शेल्टर में रहे। I'll cover that point later as well. Right. So there was a great need to propagate Krishna consciousness movement in the world, so that even though people sometimes become angry and malicious towards one another because of their being Krishna conscious, such rivalry, competition, and envy can be adjusted without difficulty. So this is how a Vaishnava should lead his life, without rivalry, without competition, and without envy. Envy, envy होता है, envy को अमरेंद्र प्रभु बोलते हैं एन एंड वी, नो वैकेंसी। If you have envy, then you have envy in Vaikuntha. वैकुंठा में नो वैकेंसी, जगह नहीं मिलेगी वहां पे। एनवी इतनी खतरनाक चीज है, राइट। तो दे बोथ किंग पृथु इमीडिएटली फॉरगिव हिम। सो फॉरगिवनेस इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, राइट। एनी क्वेश्चंस सो फार? वी आर वी रेडी टू फॉरगिव एनीवन जो भी है हमारी लाइफ में? इट इज इजी और नो? It was not Prabhuji. I remember my अपना जब भी भक्ति वृक्षा का क्लास चल रहा था ना, that हम्म। time I was not in good terms with my mother-in-law. हम्म। हम्म। Sorry to, confess. ना ना, दैट्स But ओके। after that class, it just became, when I thought, okay, she's just another soul. Maybe she has her, हम्म। history or her background. And, British हम्म। प्रभु ने इतना अच्छे से explain किया था कि why you should look at it, that person as a soul, not as a human who's just, taking the body of that woman right now. हम्म। And then it हम्म। just became so easy for me to just let go. हम्म। हम्म। So yeah, इस that was पे my personal experience at that इस time. पे स्पेशली ऑन दैट देयर इज अ स्टोरी आई टेल यू। क्या होता है, ऐसी एक सास बहू की कॉमन लड़ाई, राइट। तो बहू बहुत परेशान होती है सास से। तो वो ऐसे ही अपने अंकल के पास जाती है और उसको बोलती है कि ऐसे ऐसे है, तो मैं उसको मारना चाहती हूँ, तो वो मुझे पॉइजन दे दो। Oh my God, that नहीं नहीं, extreme stuff. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर डूइंग दैट, आई एम जस्ट, मेरे को एकदम से वो स्टोरी कनेक्शन था तो मुझे क्लिक करी। तो या तो अंकल ने उसको पॉइजन दिया। उसको बोला कि इसकी जो भी फेवरेट डिश है उसमें वो पॉइजन डाल के इसको रोज देना 6 महीने तक, ये मर जाएगी और तू पकड़ी भी नहीं जाएगी, क्योंकि ग्रेजुअल होगा तो इमिजिएटली नहीं होगा। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो रोज उसको उसके लिए स्वीट डिश बना के लेके जाती थी, या जो भी उसकी फेवरेट डिश थी वो बना के लेके जाती थी, और उसमें वो थोड़ी सी वो पॉइजन डाल देती थी। इट वेंट ऑन फॉर 6 months, and then finally she came back to to her uncle and she said, can we revert that? मैं, मुझे नहीं मारना है उसको, क्या वो पॉइजन का कुछ मुझे एंटीडोट दे दो, ताकि मैं उसको वो कर, आई डोंट वांट टू किल हर। तो ही सेड, वाई, अभी क्या हो गया? तो फिर उसके अंकल ने बताया कि मैंने वो पॉइजन दी ही नहीं थी, दैट वाज नथिंग बट सिंपल वो शुगर ही थी, उसमें कुछ और था नहीं, वो सिंपल पाउडर। तो ही सेड, आई डेलिबरेटली गिव यू दिस आइडिया कि तूने उसको प्यार से जाकर 6 महीने उसकी फेवरेट डिश खिलाई, उसको प्यार से जा जाके खिलाया ताकि वो खा ले। इसलिए तूने उसको प्यार, विद लव एंड डिवोशन यू गेव हर, एंड दैट मेंड योर रिलेशन, उसने आपका रिलेशनशिप ठीक हो गया।
right? So sometimes what happens is hurt people hurt people hurt. So someone if जो hurt है वही आपको hurt करेगा. So if sometimes what happens is कि you cannot avoid that person. अगर तो कोई बाहर का है and you can avoid it, right, बड़े easily कि ठीक है यार मैं इससे बात नहीं करूंगा, भाड़ में जा. But कुछ relationships you cannot avoid, you have to face them. So when you have to face them, then how will you do that? How will you do that? By mending that relationship, by not looking at their faults, by looking at their qualities. Fault finding क्या है, बहुत easily हो जाती है. Fault finding is like a ओशन में पानी ढूंढने जैसा है, right? Whereas ओशन में पत्थर ढूंढना इज डिफिकल्ट. फॉल्ट तो बहुत सारे मिल जाएंगे, अच्छाई नहीं दिखती है, तो हमें जो भी अच्छाई है उस पर्सन में वो देख के वी शुड मूव अहेड. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जो बंदा आपको हर्ट कर रहा होता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव एज यू सेड माता जी, बट समटाइम्स वो उसका खुद का लव टैंक खाली हुआ होता है. सो व्हेन यू सब कुछ भूल के, जैसे वो स्टोरी में मैंने बताया, सब कुछ भूल के अगर आप, उसने तो खैर सब कुछ भूला नहीं था, वो तो इंटेंशनली शी वाज गिविंग हर पॉइजन, बट इन अ वे शी वाज गिविंग हर समथिंग विद लव. तो इफ यू ट्राई टू गिव दैट पर्सन लव इररिस्पेक्टिव ऑफ उस बंदे का बिहेवियर कैसा है आपके साथ, द अदर पर्सन विल मेल्ट, द अदर पर्सन विल मेल्ट स्ट्रेट अवे. सो दिस इज व्हाट वी शुड डू कि इररिस्पेक्टिव, अगर इफ वी कैन अवॉइड, ताकि वो हमें बार बार हर्ट ना करे, दैट इज गुड. बट अगर कोई लाइफ में है जो हमें बार बार तंग भी कर रहा है एंड वी कैनॉट अवॉइड दैट, सो ट्राई दिस ऑप्शन, राइट? ट्राई टू give him or her love, which is very difficult. It is easier said than done, but if you try that, things will take a U-turn, right? And if you stop looking at the other person fault, and अगर आपने, सोचना चाहिए आपको, हमारे आईटी में बोलते हैं यू आर एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट. ठीक है? आपने 99 अच्छे प्रोजेक्ट निकाले हैं, लास्ट प्रोजेक्ट आपका गलत निकला है, तो दे विल नॉट कंसिडर यू, राइट? तो सेम वे लाइफ में भी ऐसी है. आपने 99 चीजें किसी के साथ अच्छी करी हैं, एक चीज आपने गलत कर दी, वो इंसान उस चीज को पकड़ के बैठ जाएगा और उसमें आपसे लड़ने लग जाएगा, राइट? या उस पे आपको हर्ट करने लग जाएगा. तो जब ऐसा हो, तो तब जो याद करो उसने जो अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ करी हैं लाइफ में. इफ यू मेडिटेट ऑन देम, यू विल बी एबल टू फॉरगिव दैट पर्सन इजीली. कुछ तो अच्छा किया होगा उसने, कुछ तो अच्छा किया होगा. वो चीजें वी शुड थिंक ऑफ, राइट? वो लक्ष्मण की स्टोरी सबको पता है ना, कि लक्ष्मण, जब वो लक्ष्मण रेखा करके गया था, पता है सबको? यू नो दैट, पता था, but not related to this topic. फॉरगिवनेस, दैट इज फॉर फॉरगिवनेस ना. अच्छा, ये अच्छा, यू डोंट नो दैट, राइट? हाँ, तो आई टेल यू. फॉरगिवनेस पे हाँ, मिथुल प्रभु आप बोल रहे थे कुछ. हाँ प्रभु जी, पता है प्रभु जी, जो सीता माता जी ने काफी सारा बुरा भला कहा था, लेकिन हाँ उन्होंने फिर भी फॉरगिव किया था, जो जो नहीं बोलना चाहिए था हाँ वो भी बोल दिया था। हाँ हम्म। हाँ, राइट. तो क्या हुआ था, जब लक्ष्मण जब वो मारीच आया था, जब वो हिरण आया था, तो तब उसने जब हिरण को मारा तो उसने राम राम बोला. तो सीता माता ने कहा कि उसको, लक्ष्मण को, कि यू गो, इमीडिएटली गो, योर ब्रदर इज इन डेंजर. तो वो लक्ष्मण ने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, राम वो भगवान है, वो कैसे डेंजर में हो जाएंगे? तो सीता माता बोल रही है कि नहीं, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो. लक्ष्मण वॉज नॉट रेडी टू गो, बिकॉज राम भगवान उनको बोल के गए थे कि सीता को कुछ भी हो जाए, सीता माता को अकेला छोड़ के मत जाना. देन शी फाइनली सेड, सीता माता ने उस लक्ष्मण को बोला कि यू वांटेड टू एंजॉय मी, दैट इज व्हाई यू आर नॉट गोइंग. तू चाहता है कि तेरा भाई मर जाए और बाद में तू मेरे से एंजॉय करे. एंड देन इतने हार्श वर्ड्स के बाद ही जस्ट लेफ्ट, उसने लक्ष्मण रेखा बनाई और वो चला गया. वहां पे गया, वहां पे जाके राम भगवान से गालियां खा रहा है वो. बोलता है कि यार तेरे को एक काम दिया था, तेरे से वो नहीं हुआ ढंग से. हाँ, तेरा दिमाग है कि नहीं है, क्या कर रहा है तू? वहां से भी गाली खाई, वहां से भी गाली खाई. अब सोचो वो बंदा जो 14 साल सोया नहीं है, वो उन उन लक्ष्मण के लिए
राम एंड सीता, वो ही दो, माता भी पिता भी, एवरीथिंग, एवरीथिंग वर दीज टू पीपल, और उन्हीं दो लोगों ने उनको बुरी तरह से हर्ट किया। सोचो हाउ ही कुड रिकवर फ्रॉम दैट, एंड आफ्टर दैट ऐसा नहीं हुआ कि लक्ष्मण छोड़ के चला गया, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ही स्टिल कंटिन्यूड सर्विंग देम डे एंड नाइट। हाउ? सो व्हाई? बिकॉज लक्ष्मण सेड कि जब ये दो इंसिडेंट हुए मेरे साथ बैक टू बैक, what I thought of all the good things which happened over those years, जो भी अच्छा अच्छा राम भगवान ने और सीता माता ने मेरे साथ किया, I thought of those, and that is how I controlled myself. So we should always think on those lines. That will help us in forgiving others. All right. कोई questions, comments? आगे चले? Right. So next, इसमें दूसरा क्या है कि लॉ ऑफ कर्मा। अभी क्या थे, धृतराष्ट्र के अंडर थे वो सारे पांडव। अब क्या हो गया, अब वापस वो चक्र उल्टा हुआ। नाउ दे आर एट अंडर हिज शेल्टर। अब वो, और उसने ऐसा नहीं कहा कि चलो फेंको बुड्ढे को जेल में, आ गया हूं मैं अब पावर में। हाँ, जैसे कंस कंस ने किया था, उग्रसेन को डाल दिया था, औरंगजेब ने अपने पिता को डाल दिया। बहुत है हिस्ट्री में, देर आर मैनी मैनी एग्जाम्पल्स जिसमें लोग अपने माँ बाप को, और ये तो माँ बाप थे भी नहीं, ताया और ताई जी थे, तो स्टिल ही डिडंट डू दैट। जैसे ही क्या होता है, हमें पावर की पोजीशन मिलती है, हमारे रंग ढंग चेंज हो जाते हैं, हमारे ऐसे कॉलर खड़े हो जाते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरह। हाँ, राइट। तो हमारा चाल चलन सब कुछ चेंज हो जाता है कि हम पावर की पोजीशन में हैं, राइट। तो नो, वी शुड, दिस इज व्हाट युधिष्ठिर महाराज इज सेइंग कि वी शुड नॉट, ही इज ट्राइंग टू टेल अस दैट वी शुड नॉट डू दैट। पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए हमें। वी स्टिल, वी शुड ट्राई टू रिमेंबर एंड इनकलकेट दोज वैष्णव क्वालिटीज। अगर वो वैष्णव क्वालिटीज नहीं आ रही हैं हम में, कंपैशन की और इसकी, तो उससे क्या होगा? व्हाट इट मीन्स? अगर ये क्वालिटी हमें नहीं आ रही है, व्हाट इट मीन्स? हमारी भक्ति सही नहीं चल रही है। एग्जैक्टली, वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस करेक्टली। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो और आप में क्वालिटीज ना आए, क्योंकि हमने शास्त्रों में भर भर के देखी हैं एग्जाम्पल। अभी युधिष्ठिर महाराज, ही वॉज अ प्रॉपर भक्ता, ही वॉज फॉलोइंग द प्रोसेस एंड इट वॉज सो इजी फॉर हिम टू फॉरगिव। उसके लिए कोई मुझे तिकड़म और ये कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंदर से अपने आप ही आती हैं वो चीजें, राइट। विच मीन्स हम भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे, तो स्टॉप एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं, गो बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स पे वापस जाइए। श्रवणम एंड कीर्तनम डेली सुनिए, नित्यम भागवत सेवया एंड चैंटिंग कीजिए, देन एंटर इनटू द अरीना। अदरवाइज क्या करेंगे, हम खुद भी करप्ट हो रहे हैं और हम सामने वाले को भी करप्ट कर रहे हैं, राइट। जो भी हम कर रहे हैं, हमें उसके पीछे क्लियरली पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ मैं ये। क्या ये मैं अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पोजीशन के लिए कर रहा हूँ, कि ये मैं एक अच्छा भक्त बनने के लिए कर रहा हूँ? अभी जन्माष्टमी की सेलिब्रेशंस में हम इतना वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अब अगर उस चीज में, अगर मेरे को ये आ रहा है मेरे में कि यार मैं अच्छे से परफॉर्म करवा दूं स्टेज पे, लोग, चार लोग तालियां बजाएं मेरी, मेरे को पता चले देखो क्या किया है मैंने, राइट। सो इज दैट द एजेंडा? और उस चक्कर में इफ आई एम हर्टिंग एनीवन, इफ आई एम ब्रेकिंग सम रिलेशनशिप्स, और if I'm giving anxiety to other people, what is the point of that? This is not a devotional service. It will just be a service which is damaging for myself and others as well. So whenever I'm doing any service, whenever I'm doing anything, or whenever I am in the position of power, I should ask myself this question again and again कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या मेरी भक्ति बढ़ रही है इस एक्टिविटी को करके, या भक्ति मेरी ऐसी रह रही है या कम हो रही है, राइट। इन द एंड, टास्क टास्क डज नॉट मैटर। बच्चे कैसा परफॉर्म करेंगे स्टेज पे जाके डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द रिलेशनशिप, कि उस प्रोसेस में करते करते क्या आपके रिलेशनशिप अच्छे हुए,
क्या आपकी भक्ति अच्छी हुई? क्या आप में ये फॉरगिवनेस और कंपैशन की क्वालिटी आई? मोस्ट ऑफ द केसेस ये नहीं आती, बिकॉज वी आर सो मच पैशनेट टू डिलीवर द थिंग। वो हमें मटेरियली ऑफिस में, हर जगह, पढ़ाई में यही सिखाया जाता है। टास्क टास्क ओरिएंटेड। वी शुड नॉट बी टास्क ओरिएंटेड, वी शुड बी भाव ओरिएंटेड, बिकॉज कृष्णा इज भाव ग्रही जनार्दना। और बट अनफॉर्चुनेटली हम, हमारी अपब्रिंगिंग और ये सब चीज़ें ऐसी हुई हैं बाय डिफॉल्ट, इतने ज़्यादा पैशन में रहते हैं हम कि हमें रिजल्ट, हम वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टास्क ओरिएंटेड, राइट? तो युधिष्ठिर महाराज was not, that is why even though he became the king, वो पोजीशन में आ गए, still he did not uh, treated his uncle and aunt badly, rather वो उनको जाके कंसोल कर रहे हैं। Alright, second thing, what is mentioned here is Gandhari, who was an ascetic. Ascetic क्या होता है? तपस्विनी, ऊपर लिखा है ना उसने, गांधारिम च तपस्विनीम। सो गांधारी को तपस्विनी बोला है। अब तपस्विनी क्यों बोला गांधारी को? Why Gandhari is called तपस्विनी? बिकॉज प्रभु जी, जब उनकी उनकी और धृतराष्ट्र की मैरिज हुई, तो और हम्म। जब उन तब जाके उनको पता चला कि धृतराष्ट्र भी अंधे हैं, तो उन्होंने हाँ देखते हुए भी अपनी आंखों पे पट्टी लगाई, तो वो एक ऑस्टेरिटी हुई। तो हाँ, एग्जैक्टली exactly. उसने देखा कि मेरा हस्बैंड अंधा है, तो मैं भी अपने आंखों पे पट्टी बांध लूंगी। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। आंखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आंखें, तुम दुनिया देखते हो आंखों से, और किसी की आंखें एक्सीडेंट में चली जाएं या जन्म से अंधा हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपनी आंखें बंद कर लेना इज अ वेरी वेरी बिग ऑस्टेरिटी। ठीक है, दैट इज वन पॉइंट। अनदर इज के अपने बच्चों का लॉस, नॉट ओनली बच्चे, जैसे पांडवों के भी आगे पुत्र मारे गए थे, ऐसे कौरवों के भी आगे बच्चे थे, वो भी मारे गए थे। तो अपने पुत्र पौत्र सबको मरने के बाद भी शी वॉज ओके, दैट इज वाई शी वॉज कॉल्ड तपस्विनी, राइट? और वो जो आंखें उन्होंने अपनी बंद करी थी, उससे इतना उनमें तेज आ गया था, इतना तेज आ गया था, सबको पता है वो स्टोरी, राइट? कि वो दुर्योधन को उन्होंने जब बोला कि दुर्योधन की उन्होंने बॉडी पूरी वज्र की बना दी थी, और बीच में उनको कृष्ण भगवान मिल गए, तो उन्होंने उनको बोला कि ऐसे कैसे तू, यू आर गोइंग नेकेड। तो उन्होंने फिर बोला कि केले का एटलीस्ट पत्ता लगा ले वहां पे। तो ही वेंट देयर एंड दैट इज हाउ दिस होल स्टोरी एवरीवन नोज, राइट? तो हाउ शी वाज एबल टू डू दैट? बिकॉज शी वाज अ तपस्विनी। तपस्या से इतना ज्यादा उनके अंदर तेज था, राइट? अब इसमें प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं उसमें, कि द ड्यूटी ऑफ द वुमेन इज टू फॉलो हर हस्बैंड 100%। हाँ, अपने पति, अगर मेरा पति अंधा है तो मैं भी अंधी हो जाऊंगी। हम्म, अपने पति को 100% फॉलो करना है, राइट? कैन एनीवन डू दैट? ये लिखा हुआ है ना, अ वाइफ्स ड्यूटी इज टू फॉलो हर हस्बैंड 100%। इसमें हमारे बहुत सारे, हमारे इसमें एग्जांपल्स हैं, करदम मुनि और देवहूति की, परफेक्ट एग्जांपल, जिनके कपिल मुनि हुए हैं बाद में, राइट? तो करदम मुनि वॉज डूइंग तपस्या, डिवोशनल सर्विस 24 घंटे। और देवहूति, देवहूति कौन थी? मनु की डॉटर, किंग एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, उनकी डॉटर एक कुटिया में जाके एक ऋषि की सेवा करे जा रही है, करदम मुनि की। कैन यू इमेजिन? और जस्ट बाय डूइंग दैट, जस्ट बाय सर्विंग अ डिवोटी, व्हाट शी गॉट? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इन हर womb. दिस इज द बेनिफिट of following a husband 100%. But that husband should not be कि चलो मैं शराब पी के आ रहा है वो ठेके से, उसके बाद मैं, या वो एक बोतल लेके आया और उसको मैं बोलती हूँ हाँ जी मैं आपके लिए वो चखना ला के रखूँ जी, पति, पति देव। दैट इज नॉट द फॉलोइंग। A husband should be teji amsam. It is mentioned in Sanskrit. A husband should be spiritually elevated. Then you should follow. राइट? अगर हस्बैंड आपका आपसे चखना मांग रहा है बॉटल रखने के बाद, और पत्नी को फॉलो कर रही है, देन दैट इज नॉट व्हाट इट मींस हियर, द वाइफ्स ड्यूटी, दैट इज नॉट अ वाइफ्स ड्यूटी।
to follow husband 100%, right? But at the same time, आज की डेट में क्या हो गया है कि इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, राइट? मैं भी वहाँ हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, पायलट्स हैं, हर हर फील्ड में वुमेन आर देयर। बट ब्रह्मा ने कुछ सोच के इस किसी सोल को मैन या किसी सोल को वुमेन की बॉडी में डाला है, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सेम साइकोफिजिकल नेचर, दे हैव डिफरेंट स्वभाव, राइट? तो जितना हम वैदिक सभ्यता से दूर जाते जाएंगे, उतने ज़्यादा हमारे डाइवोर्स केसेस बढ़ते जाएंगे, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी द एंजॉयर, राइट? वेयर एज दैट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ वाइफ। की ड्यूटी है टू फॉलो हर हस्बैंड। ऑब्वियसली इट वर्क्स बोथ वेज, जैसे मैंने पहले बताया कि हस्बैंड ऑल्सो शुड नॉट बी क्या बोलते हैं उसको, टेम्परामेंटल, हाँ, एकदम से गुस्सा आ जाए उसको, एंड शुड नॉट बी डूइंग अ डोमेस्टिक वायलेंस और सब ऐसी चीजें ना कर रहा हो। बट अगर हस्बैंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, देन वुमेन शुड नॉट कम्पीट कि यार मैं भी करूं, वो कर रहा है तो मैं भी करूं, राइट? वुमेन अगर सिर्फ उसकी सेवा कर लेगी, एंड इफ शी असिस्ट हिम इन growing spiritually, she will anyway get full benefit just by serving her husband. Right? And again, both ways, दोनों दोनों तरफ से। दूसरा एक मीनिंग क्या निकलता है कि अगर हस्बैंड स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, तो वाइफ को भी स्पिरिचुअली ब्लाइंड नहीं हो जाना है, ठीक है? वाइफ को स्टिल, अगर ठीक है हस्बैंड नहीं भक्ति कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ भी ना करे, उसको फिर भी भक्ति करनी है कि एटलीस्ट वो हस्बैंड को प्रसादम तो खिला पाए, प्रसाद खिला के एटलीस्ट उसको नेक्स्ट एनिमल बर्थ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट उसको नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ तो मिल जाएगा, राइट? सो इट शुड बी बोथ वे। सो हस्बैंड शुड बी तेजी यमसम, which is spiritually elevated, and wife should be chaste, like Gandhari was a chaste wife. She followed her husband, although it is debatable for right reason or wrong reasons that we already discussed, right? So at the start of this chapter, now this is second last shloka, maybe we'll do the next shloka to on Thursday. So, but yeah, so at the start of this chapter, if you see, Yudhishthir Maharaj was very grieving, दुख में थे, कुछ हो नहीं रहा था उनसे। बट जस्ट एक चैप्टर में क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ही रादर कंसोलिंग धृतराष्ट्र एंड गांधारी। सो ये कैसे हुआ, ये कैसे यू टर्न लगा? कहाँ उनको लोग कंसोल कर रहे थे, ऋषि मुनि आके, कृष्णा आके, भीष्म देव ने पूरा पर्व, सबसे बड़ा ये पर्व है महाभारत में, तो वो कर दिया। ये एक डिप्रेस्ड आदमी से एक मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन गए युधिष्ठिर महाराज? जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज ही गॉट फ्रॉम भीष्म देव, राइट? इनिशियली कोई युद्ध नहीं चाहता था, युधिष्ठिर महाराज युद्ध नहीं चाहते थे, अर्जुना भी युद्ध नहीं चाहता था, इवन भीम, भीम जिसने की वाव ली थी कि मैं सबको मारूंगा, वो भी मान गया था जब कृष्णा ने बोला कि मैं संधि प्रस्ताव लेके जाता हूँ। वो भी मान गया था कि इट्स ओके, चलो मुझे हमें 5 गांव दे दो, मैं नहीं करता हूँ। बट स्टिल दे फॉट एंड दे वन, एंड बट युधिष्ठिर महाराज वाज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। बट लेटर व्हेन भीष्म पितामह ने उनको पूरी ये ज्ञान दिया, देन ही रिकवर्ड, right? All right, so we'll stop here, and I'll just tell the key takeaways for today. Okay, forgiveness and compassion. These are very, very important qualities. Especially जो लोग भक्ति वृक्षा चला रहे हैं, मेरे गुरु महाराज ने भी मेल, आई थिंक आई emailed him and he replied that compassion is the number one quality which a Vaishnava should have. Hmm? So forgiveness and compassion, these are the qualities which we discussed today. And we also discussed that tapaswini feature of Gandhari, that women should follow a husband provided the husband is spiritually elevated. All right. So
Any questions, comments? सब क्लियर है? ऑल राइट, चलो मिलते हैं फिर थर्सडे। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. हरे Last, कृष्णा। हरे just कृष्णा। one हरे कृष्णा। comment is just वो ladies का बोला ना आपने कि husband को follow करना चाहिए. Practically, it's really hard. Having practicing it myself, it's really hard. I know, but as I said, it is subject to the condition that husband Yeah, is spiritually elevated as well. that's But correct. even Yeah, though, even if he is not spiritually elevated, that's a very big word. कलयुग में आपको कोई spiritually elevated husband नहीं इतने मिलेगा। मिलेंगे नहीं. हाँ. हाँ, but still, by nature, जैसे मैंने कहा ना माता जी कि by हाँ. nature, women have to be submissive. That is the point. That is what is happening these days. कि both want to enjoy. अब मेल मेल क्या है? मेल भी बोल रहा है कि आई एम द एंजॉयर। ठीक है। हम्म. अब जो फीमेल है, दैट इज ऑल्सो सेइंग दैट आई एम द एंजॉयर। अब जब बोथ आर एंजॉयर, बोथ वांट टू हम्म. एंजॉय, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क। बोथ हम्म. में पुरुष भाव है। दिस इज व्हाई देयर आर सो मेनी डिवोर्सेस हैपनिंग। वेयर एज अदर वे अराउंड, जैसे कि आपको पता ही है ना कि वी बोथ, कृष्णा इज द ओनली सुप्रीम एंजॉयर। हम क्या है? प्रकृति। चाहे हम मेल प्रकृति. हैं या फीमेल हैं, हम खुद Yeah, से एंजॉय करने जाएंगे, हम एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे we कभी। will struggle. विल स्ट्रगल। तो दैट इज व्हाई आई थिंक इफ वी बिकम सबमिसिव एंड नॉट ओनली मेल फीमेल, मैं जैसे कि मैं उसमें फॉरगिवनेस वाले में भी बोल रहा था कि इफ वी टेक अ हम्बल पोजीशन, द अदर पर्सन मेल्ट्स एनीवे। सो दैट इज एनीवे वेरी गुड टेक्टिक, आई वुड से that you take a humble position, the other person will say कि यार ओके, बिकॉज ये क्लैशेस, ये ईगो की ही क्लैश होती है मैक्सिमम। हस्बैंड वाइफ में ईगो जीत जाती है, दोनों की ईगो जीत जाती है, लेकिन मैरिज जो है वो फेल हो जाती है। ऑलराइट। Absolutely. The biggest learning from today's was that, yeah, that humble position, choose your battles. करेक्ट, करेक्ट। ऑलराइट, थैंक यू। Thank हरे you. Hare कृष्णा। Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय। हरे अमित कृष्णा। भक्त थैंक यू वृंद प्रभु। की जय। हरे कृष्णा। बाय बाय।